Good morning, students. Hope you all are fine. Students, today we will revise exercise 3.7. So let's start with question number 4. Open your books. Let's start with the question number 4. Before this, I want to explain one thing. In the statement problems, you will observe divisible by, divided by, which divides, these types of wording like this. Divisible by, divided by, which divides. Now, divisible by, if I am writing here a number divisible by 6 and 4. Divisible by. So, what does it mean? Bhavesh? Bhavesh? Yes, Bhavesh, tell me divisible by. क्या मीनिंग है इसका divisible by? जैसे मैम 6 is divisible by 4. 6 is divisible by 4. मैं आपसे ये पूछ रही हूँ बेटा divisible by का क्या मीनिंग होता है? 6 तो 4 से डिवाइड नहीं होता. मैम डिविजिबल बाय का क्या मीनिंग होता है? कि ये नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है. वेरी गुड. डिविजिबल बाय 6 एंड 4. डिविजिबल बाय का मतलब होता है किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होना. ठीक है. नाउ टेल मी, मल्टीपल्स डिवाइड होते हैं कि फैक्टर्स डिवाइड होते हैं? क्योंकि इसकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा स्टेटमेंट सम्स करने के लिए. स्टेटमेंट सम्स डिवाइड होते हैं. कौन डिवाइड होते हैं? फैक्टर्स डिवाइड होते हैं. 2 3s आर 6. 6 फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 6 मल्टीपल है. बताना मुझे जरा कौन डिवाइड हो रहा है? 2 इज अ फैक्टर, 3 इज अ फैक्टर, 6 इज मैम मल्टीपल्स. हाँ जी, मल्टीपल्स डिवाइड होते हैं. ये multiples are coming in this category, divisible by. So whenever you will observe divisible by, इसका मतलब है डिवाइड होगा. कौन डिवाइड होता है? मल्टीपल डिवाइड होता है और फैक्टर डिवाइड करता है. राइट डाउन इन योर नोटबुक, ये लिख लो जो मैं वर्डिंग बोल रही हूं. मल्टीपल खुद डिवाइड होगा और फैक्टर किसी दूसरे को मल्टीप्लाई करेगा. डिविजिबल बाय का मतलब खुद डिवाइड होना. सो इट विल इंडिकेट दैट मल्टीपल सम एंड विच डिवाइड्स मीन्स जो डिवाइड करेगा. कौन डिवाइड करता है? फैक्टर डिवाइड करता है. तो then the sum is based on factor. So clarity of this thing is very much compulsory. नहीं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं पेपर में? एलसीएम का सम एचसीएफ से और एचसीएफ का सम एलसीएम से सारा करके आ जाते हैं. फाइन. So let's start now. Check question number 4. Question number 4 is
Determine the smallest three-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. ये क्वेश्चन है. Divisible by will indicate that this sum is based on multiple, and multiple will indicate that this sum is based on least common multiple. So in the step number 1, you will find out the LCM of 6, 8 and 12. This is your first step. Now, to find out LCM, I am going to apply the common division method. This is the common division method. What is the name of this method? The name of this method is common division method. First of all, division by 2, 3, 4, 6. Again, division by 2, 3, 2, 3. Then by 2, and in the end division by 3. So LCM is equal to 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied by 3, and you will get 24. This is your first step. 24. Fine. But the question is based on determine the smallest three digit. The requirement is of 3 digit, but ये तो हमारा 2 digit है. This is a 2 digit number. Now come to the step number 2. Come to the step number 2. I am going to find out the multiples of this 24. Fine. Now 24 multiplied by 2, 48. Not a required result. 24 multiplied by 3, 72. Not a required result. 24 multiplied by 4, 96. Not a required result. 24 multiplied by 5, 120. So in the result, you will write required number is equal to 120. So like this, we will solve the sum. Divisible by will indicate that this sum is based on least common multiple. So first of all, you will find out the least common multiple, but this is a 2-digit number. And our requirement is of 3 digits. So you will find out the multiples. 24 multiplied by 2, again 2 digit, तो ये नहीं है. 24 multiplied by 3, again we have 2 digit, so this is not the result. So multiply and you will get 120, and this is a 3-digit number. So this is the result. Required number is equal to 120. Fine. After that, come to the question number 5th. Come to the 5th question. Question number 5th. Arjun. Leave it. Arjun, read. Yes, ma'am. Read question number 5th.
बेटा रीड क्वेश्चन नंबर 5th. Janisha, unmute yourself. Yes, ma'am. Beta read 5th question. Determine the greatest three-digit number exactly divisible by 8, 10, and 12. Again, divisible by 8, 10 and 12. Now Janisha, according to you, this question is based on highest common factor or least common multiple? Ma'am, LCM. Least common multiple. Fine. So in the step number 1, tell me step number 1. Beta, as you are saying, this sum is based on LCM. So in the step number 1, we will find out the LCM. LCM of 8, 10 and 12 as divisible by. Divisible by means जो divide होगा. और कौन divide होता है? Multiple. So in the first step, you will find out the LCM. So by the common division method. 8, 10, 12. Now, first of all, division by 2. Start finding prime factorization and tell me what is the LCM. Students, start finding. Yes, Aditya, find and tell me the result. Very good, Suhana. Find by yourself. Find by yourself and tell me the result. Very good, Harshia. Well done, Bhavya. Yes. First of all, 2, 4, 5, 6. Again, division by 2. 2, 5, 3. Again, division by 2. 1, 5, 3. Then division by 3. And in the common division method, you will only use prime numbers. You will not use any composite number. Always use prime numbers. So 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiplied by 5 will give you 120. So this is the required result. Harshia, unmute yourself. Very good, Bhavesh. Yes, this is not the required result. Harshia, Yes, are you hearing ma'am. me? Yes, ma'am. Tell me, Harshia, this is the required result? मैम नो बिकॉज मैम क्वेश्चन में लिखा है कि मैम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 and 12. हाँ तो ये हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा. इसको करो डिवाइड. ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा. दिस इज द, आपसे ये पूछ रही हूँ, दिस इज द रिजल्ट. Very good, Suhana. Very good, Kanav. Ritisha, well done. Very good response from all of you. Harshia, this is the LCM least. ये least है. Yes, ma'am. Least means छोटा. But question देखो क्या है? Determine the greatest three digit number. कुछ बच्चे क्या करेंगे? इसको आंसर लिख देंगे. क्यों? क्योंकि ये 3 डिजिट आ गया. तो क्या करेंगे? पेपर में सीधा ऐसे लिखेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू 120. क्यों? बिकॉज द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 3 डिजिट.
है ना, तो ये 3 डिजिट है। बट चेक द वर्डिंग ऑल्सो, द वर्डिंग इज ग्रेटेस्ट 3 डिजिट। ये 3 डिजिट तो है पर ये ग्रेटेस्ट नहीं है। दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये लीस्ट है। तो आपने सिर्फ पेपर में 3 डिजिट को नहीं देखना, वर्डिंग को भी देखना है। दिस इज 120 बट दिस इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा। हमें चाहिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट। सेव, फाइंड आउट द मल्टीपल्स। स्टार्ट करो इसके मल्टीपल्स फाइंड करने। 120 मल्टीप्लाइड बाय 2, 120 मल्टीप्लाइड बाय 3, 120 मल्टीप्लाइड बाय 4। स्टार्ट करो स्टूडेंट, स्टार्ट योर काउंटिंग। यस, मल्टीप्लाई करते जाओ इसको। 120 मल्टीप्लाइड बाय 5, यस। 120 मल्टीप्लाइड बाय 2 will give you, हाँ, yes भावेश, you can start with 9 also, yes, very good, so 240। फिर आगे चलो अभी, क्योंकि हमें चाहिए ग्रेटेस्ट। then yes, 120 multiplied by 3 will give you 360, 120 multiplied by 4 will give you 480, 120 multiplied by will give you 600, then 120 multiplied by 6 will give you 720, 127 840, then 120 multiplied by 8 will give you 960, and 120 multiplied by 9 will give you 1080। तो ये तो 4 डिजिट हो गया ना, ये तो 4 डिजिट हो गया, तो ये नहीं है। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट क्या आया? 960, बिकॉज कंडीशन क्या थी? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। यहाँ जाके हमने स्टॉप किया क्योंकि 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन में हमें 1080 मिला, वो 4 डिजिट हो गया। तो इससे पहले ये जो 960 है ये सबसे बड़ा है। सो रिक्वायर्ड रिजल्ट इज, रिक्वायर्ड नंबर इज 960। यस, सो आप बैक से भी स्टार्ट कर सकते हो, 9 से मल्टीप्लिकेशन भी स्टार्ट कर सकते हो। सो लाइक दिस वी विल सॉल्व। हर्षिया, आप पेज ही हिलाते रहे हो पूरे पीरियड। सो रिवाइज। यस भावेश, भावेश। yes ma'am। भव्या, वेट। यस भावेश, टेल मी। मैम मैंने कहना था मैम, अगर स्मॉलेस्ट नंबर होएगा मैम तो हम हाँ, फिर 120 आंसर, फिर 120। अगर होता फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो फिर ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट, बस ये। अगर मैम बिगर होए किसी में अभी तो हम 90 शुरू कर सकते हैं, हम तो हाँ, आराम से हाँ, मिल कर जाएगा। सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। अगर होता स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, ओके मैम, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, तो ये आपका रिजल्ट, बस फिनिश। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 120। तो तभी तो मैं बोल रही हूँ रीड योर क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट। भवेश, अनम्यूट योरसेल्फ। भव्या, स्टार्ट रीडिंग 8th क्वेश्चन। Yes ma'am। Ma'am, find the least number which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case। Yes, tell me. This question is based on? Ma'am, this question is based on LCM and then we will जब जो LCM निकलेगा उसमें 5 ऐड कर देना है। This is the question, no? Yes ठीक है। ma'am। Yes. Find the least number which when divided by, divided by means divisible by, जो Yes, divide होगा
कौन डिवाइड होते हैं? मल्टीपल्स. So again this Multiples. question is based on multiple. It means least common multiple. So in the step number 1 we will find out the least common multiple of 6, 15 and 18. Bhavya, what is the name of this method? Ma'am, prime factorization method. Prime factorization method, but common division method. Yes, ma'am. In prime factorization method, you will put all the numbers separate. This method is the prime factorization method. In this, Okay, ma'am. we will use prime numbers, but the name is common division method. Common division method. Okay, ma'am. Why? Because we will put all the numbers together. हमने सारे Yes, के ma'am. सारे नंबर इकट्ठे लिखे हैं. तो इसका नेम आपने क्या बोलना है? कॉमन डिवीजन मेथड. Common division method. यूजिंग प्राइम्स. ठीक है? कॉमन Okay, ma'am. डिवीजन मेथड यूजिंग प्राइम्स. पर्टिकुलर प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा वो होता है जिसमें हम अलग अलग नंबर लिखते हैं. राइट? Okay. गुड. यस कनव. मैम मैंने पूछना था कि अगर हम 6, 15 और 18 का एलसीएम निकाल के अगर उसमें ऐड कर दें 5 तो क्या करना ही ऐसे है? वो आपने कहा ना कि वो मल्टीपल निकालने हैं, आपने वो सेपरेटली लिखा हुआ था. नहीं 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 नहीं, वो तो मैं भव्या से डिस्कशन कर रही थी. भव्या की बात क्लियर कर रही थी. ऐसे ही करना है हमें सम. ऐसे ही करेंगे. नाउ इन द टेबल ऑफ 2, 3, 15, 9, then division by 3, 1, 5, 3, again division by 3, 1, 5, 1, then 5, 1, 1, 1. ऐसे ही करना है बेटा. वो तो मैं भव्या को कॉमन डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन में डिफरेंस बता रही थी क्या होता है. फाइन. नाउ ओके, थैंक यू मैम. 2 multiply 3 Yes, multiply 3 multiplied by 5, and after multiplication you will get 90. But with the condition leaves remainder 5. So in the step number 2, 90 plus yes, 90 plus 5. So required number is equal to 95. Okay? So like this we will solve the sum. Yes. Now students, now listen to me very very carefully बेटा. मैंने आपको एक मैसेज भेजा था. अभी आपको एक गूगल फॉर्म में क्विज आएगा 4 दिसंबर को. Listen. Quiz on 4th December, internal assessment quiz. Quiz. 4th December. In the form, Google form. I will send you one link. मैं आपको एक लिंक भेजूंगी. ठीक है बेटा. इसके लिए आपके फोन या सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी आपके पास है उसमें आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए. जीमेल अकाउंट इज रिक्वायर्ड. आपका या आपके पेरेंट्स का. ये नहीं है कि आपने अपना स्पेशल क्रिएट करना है. नो. वैसे तो आजकल एंड्रॉयड फोन्स में 99% जीमेल अकाउंट होता है. बट फिर भी अगर किसी के पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो अपना बेटा क्रिएट कर लेना, क्योंकि ये गूगल फॉर्म का लिंक तभी ओपन होगा अगर आपका जीमेल पे अकाउंट है. नहीं तो ये ओपन नहीं होगा. फाइन. और इसकी प्रैक्टिस के लिए, ये तो 4 दिसंबर को है ना, इसकी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस, I will send one link on Saturday, 28 ये. फाइन. प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सैटरडे को एक लिंक शेयर करूंगी. इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता भी लग जाएगा भी हमारा ओपन हो रहा है या नहीं ओपन हो रहा. फिर उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी भी हमारा अकाउंट सही वर्क कर रहा है या नहीं. फाइन. सो नोट डाउन इन योर नोटबुक. क्विज ऑन 4 दिसंबर, इंटरनल असेसमेंट है ये, आपकी मार्क्स लगेंगे. एंड दिस क्विज इज बेस्ड ऑन PT3 सिलेबस.
जो अभी हमारा सिलेबस है डेसिमल, डेटा हैंडलिंग, सिमेट्री, प्लेइंग विद नंबर्स. So this quiz is based on PT3 syllabus, internal assessment, final on 4th December, and for practice I will send you the link on 28th. Fine. Yes, Satvik. मैम मैंने पूछना था कि मैम आप मेरे को लास्ट वीक का सारा होमवर्क बता दो, क्योंकि मैम मेरा ना फोन गुम हो गया था एक मैजिक फंक्शन में। बेटा आपने मुझे मैसेज करके क्या बोला था अभी? मैडम मुझे टाइम दे दो, मैं अपने फ्रेंड से पूछ लूंगा. आपने मुझे मैसेज में ये लिखा था ना? मैम किसी ने भेजा ही नहीं मैम, मैंने बोला था फोन हाँ, करके। तो फिर आपको कर दूंगी मैं आज. मैं तो उसी दिन ही रेडी थी भी आपको मैं कर दूं, पर आपने मैसेज में लिख दिया कि मैं अपने फ्रेंड से ले लूंगा. आई विल सेंड. मैं आज आपको कर दूंगी सेंड. 2 क्वेश्चन ही है होमवर्क में. रिमेनिंग 13 चैप्टर मोस्टली आपको वीडियोस में मिलेगा, जो यूट्यूब पे मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ ना, उसमें. यस मैंने जूम का लेक्चर रिकॉर्डेड सब किया हुआ है अपलोड. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी चैप्टर 13 को करने में. मैं आपको होमवर्क सेंड कर दूंगी. ठीक है, थैंक यू मैम। ओके. यस भव्या. Yes, ma'am. एनी डाउट? यू हैव रेज्ड हैंड. Ma'am, no for giving the answers of question. बेटा अगर किसी को डाउट नहीं है तो हैंड डाउन. सिर्फ वही हैंड्स अप करो जिसको डाउट है. ऐसे मुझे पता नहीं लगेगा. यस कनव. मैम जब हम पेपर देंगे मैम वो हमको चेक होके रिसेंट आएगा? कौन सा? जी वाला जो आप कह रहे हो कि गूगल फॉर्म पे होगा जो. ये गूगल फॉर्म का रिजल्ट गूगल फॉर्म उसी टाइम ही शो कर देता है. ओके मैम. गूगल फॉर्म के पेपर चेक होके के आने अब वही शो हो जाता है रिजल्ट. यस भावेश. मैंने क्या था जो आप लिंक भेज रहे हो उसमें डेफिनेशंस फॉर्म के क्वेश्चंस नहीं, आएंगे। क्विज क्या होता है? एमसीक्यू. क्विज क्या होता है? एमसीक्यूज. मैम यस मैम। 4 ऑप्शन होंगे. ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को क्लिक करना है आपने. लिखना नहीं है कुछ भी. यस हरजीत. मैम मैंने कहना था कि आपने जो जो लिंक सेंड करना है सात्विक को, होमवर्क लिंक, मैम वो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, बिकॉज मेरी भी मैरिज फंक्शंस के कारण मैंने भी क्लासेस ज्वाइन नहीं की. आप क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं समझ आया. मैम जो आपने कहा है कि होमवर्क मैं लिंक सेंड करूंगी जो सात्विक को, मैम वो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं. सात्विक को थोड़ी सेंड करूंगी. सात्विक का तो फोन गुम हो गया है. उसको तो अपना काम चाहिए. लिंक तो मैं 4 दिसंबर को सेंड करूंगी, सारी क्लास को सेंड करूंगी. मैम नो, जो आपने होमवर्क कहा है यूट्यूब लिंक. मैंने नहीं बोला सात्विक को. मैंने कहा चेक करो आप यूट्यूब से, मैं आपको होमवर्क भेज दूंगी. मैंने क्या सेंड करना है? वो तो स्कूल की यूट्यूब पे सारा कुछ पड़ा हुआ है. मैं उसको होमवर्क सेंड करूंगी. वो मेरे से होमवर्क पूछ रहा है. Yes, Pawan. Now come to the next question. Pawan. मैम मैंने पूछना था, जैसे आप जो सा लिंक सेंड करोगे वो हम ग्रुप में भेजोगे या पर्सनल नंबर में? ग्रुप में. ओके मैम, थैंक यू। Now tell me how can we solve this sum? Write 840 in prime factorization form. In prime factorization form. Tell me.
मैम एलसीएम फॉर्म मैम बेटा उसको एलसीएम फॉर्म नहीं बोलते, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फाइन, Yes, आपने बिल्कुल सही बोला, बट उसको एलसीएम नहीं बोलते। वी विल अप्लाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइन, ओके तो इसको एलसीएम नहीं बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बच्चों को करेक्शन करवाई है। ये मेथड का नाम एलसीएम नहीं है, ये मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके ठीक है। एंड में जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो एलसीएम आता है हमारे पास, बट इसको एलसीएम नहीं बोलना, ये बिल्कुल गलत है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन बाय, टेल मी, 2 बाय विच नंबर? 2 वेरी गुड। सो 420, नेक्स्ट डिवीजन बाय, 2 yes, and you will get 210, and next division by, 2 you will get, tell me, you will get what? मैम पहले जाएगा, एक मिनट मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। Students, write them in the chat box. 210 divided by 2 will give you, yes, मुझे पता था कि इन्होंने 50 नहीं लिखना है। I know नित्या, तभी मैं अगेन एंड अगेन पूछ रही हूँ, मुझे पता है कितनों ने इसमें ना 15 आंसर देना है इसका, और लिख भी रहे हैं 15। 210 divided by 2, 2 ones are 2, 1. Division is not possible. एक स्टेप में we will use only one digit. If the division is not possible, then you will take the help of zero, multiplication with 0. Then 2 5s are 10. So 105. This is not 15. After that, division by मैम 5 पर 5 3 पे भी हो जाएगी, हाँ 5 पे भी हो जाएगी, 3 पे भी हो जाएगी, जैसे मर्जी कर लो, योर विश। 5 पे 21, again on 3, 7, 7, 1. Right? So in the end, you will write like this: result 2 multiply 2 multiply 5 multiply 3 multiply by 7. मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दोगे तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए, तो स्टॉप हियर। फाइन, सो वेरी गुड पवन। कम टू द नेक्स्ट। एलसीएम, प्रेरणा रेज योर हैंड बेटा। एलसीएम into HCF is equal to first number multiplied by second number. This is the very important relation. Yes, Prerna, unmute yourself, beta. Yes, ma'am. Now, this is a very important relation. LCM into HCF is equal to first number multiplied by second number. Fine. Now, my question is, पूरा नहीं, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ठीक है। The LCM and HCF of two numbers is 30 and 15. LCM is given to you 30 and HCF is given to you 15. One of those number is 10. One of those means first number. One means first मैम number. आपकी आवाज नहीं एडजस्ट हो रही। First number is equal to 10. Find the second number. मैम
नित्या, मैम नित्या अनम्यूट योरसेल्फ। Yes. Yes, ma'am. नित्या मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay. Now tell me, how can you solve this sum? LCM is 30, Ma'am. LCM is 50. First number 10. Find out the second number. First, we put all the numbers to their. First, we put. Ma'am, हम सबको अपनी अपनी जगह पे डाल देंगे, जैसे Very good. LCM. Yes. And you have to write this formula. This formula is very much compulsory. LCM कितना है? 30. तो मैं LCM के 30. केस में क्या लिखूंगी? 30. 30. What is HCF? 50. 50. 15. First number 10. And second number n. And if you want to write x, तो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? Now 30 multiplied by 15 will give you 450. Fine. So 10 Yes. multiplied by second number. Now Nitya, how can you find this second number? मैम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. Very good. Well done. Now you will shift this 10 to the left hand side and multiplication will change to division. So 450 divided by 10 will give you second number. Fine? Very good. Well done. Now students, one more thing that I want to discuss with you from the chapter data handling. वो अभी मेरे माइंड में है, ठीक है? तो डेटा हैंडलिंग, in the table of tally marks, whenever you will write here tally marks and here you will write number. काउंटिंग करते हो ना नंबर की अगेन एंड अगेन, भी वो कितने टाइम खुद को रिपीट कर रहा है, देन दिस रिपीटेशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. दिस रिपीटेशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर रिपीट इटसेल्फ. अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 1 1 2 3 1 4 5 1 2 1. Now tell me, what is the counting of 1 here? 1 कितनी बार खुद को रिपीट कर रहा है? Tell me, what is the counting of 1 here? 1 2 3 4 5 6 6. So this is the frequency of 1. This is the frequency of 1. तो 1 नंबर खुद को कितनी बार रिपीट करेगा उसको क्या बोलते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी. So this term is very important. Fine. And now tell me, what is the frequency of 2? यहाँ पे एंड में आप टैली मार्क्स में फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो. फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है रिपीटेशन. Now what is the frequency of 2? 1 2 3. So frequency of 2 3 times. Yes. फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, मैं 2 की पूछ रही हूँ. फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 मीन्स 2 खुद को कितनी बार रिपीट करेगा. नाउ टेल मी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3?